welcome Lalamites. Today we are here again for another episode of our Talking Tuesday interview. So we have brought uh, three faces in front of you. Dr. Nilima Pant ma'am from 1966 batch, Dr. Rashmi Rastogi from 1971 batch and Dr. Sushma Prakash from 71 batch. तो आज जो है हमारा ये कुछ इंटरव्यू अलग टाइप का है. इसमें हम लोग जो है कॉलेज के दिनों को याद करेंगे. हम देखेंगे कि 60s के एरा में हमारा कॉलेज कैसा था और हम देखेंगे हमारा 70s के एरा में कॉलेज कैसा था. तो ये इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू से काफी हटके हैं. तो मेरे साथ इस इंटरव्यू को हम एक्चुअली चारों इसको कोऑर्डिनेट करेंगे. कोई इसमें जो है ऐसा नहीं है कि जो है क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे फॉर्मल. बिल्कुल इनफॉर्मल चिटचैट चलेगी और हम लोग कॉलेज के दिनों को याद करेंगे और मस्ती करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को बहुत मजा आएगा. तो शुरू करते हैं नीलिमा मैम आपसे. तो आप जो है थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए और अपनी जर्नी के बारे में आप बताइए हमारे सभी सुनने वाले और देखने वालों को. It's a very short story. Nothing glamorous. That's what I told you. And I was entered the medical college, finished it. And thereafter, I was posted as in Dufferin Hospital, District Women Hospital there. And from there, I retired. That's my story. Very simple. वो वाले किस्से तो सुनाइए डॉक्टर पंत. हेलो, वो किस्से तो सुनाइए जो शादी के और डॉक्टर रमा वैश के. डॉक्टर रमा वैश हमारे टाइम में she was very inspiring. She used to go to London all the times. And she used to be impeccably dressed, like matching from head to toe. She was excellent, but she was very strict, very, very kind of rude kind of a person. But we still admired her. क्या बात है. अच्छा, Dr. Tyagi was there. The principal. याद है रमा वैश का. She was very strict रमा वैश. लेकिन एक बार क्या हुआ मेडिकल कॉलेज में लड़कों ने एक फीमर से किसी लड़के की पिटाई कर दी. फीमर से याद है सुषमा. तो वो लड़का बहुत बैडली हर्ट. डॉक्टर रमा वैश शी केम टू आवर क्लासरूम एंड शी आस्क्ड कि भाई फीमर से किसने पिटाई की. तो लड़का खड़ा हो गया. तो रमा वैश कहती है बेटा अगर आपको पीटना था तो फिबुला से ही पीट लेते ना, फीमर से पीटने की क्या जरूरत थी. And she had a singing tone. Do you remember her tone? पीटना था तो फिबुला से पीट लेते. That's sort of. लड़कियों को अगर लड़कियां स्मार्टली आती थी हमारे बैच में तो बोलते थे कि तू यहाँ पढ़ने लिखने आई है या दाईगिरी करने आई है. But she used to be dressed like anything. सलवार पहन के आती थी तो कहती थी इसमें तो मेरी दो आया भी अंदर चली जाएंगी. नीलिमा मैम थोड़ा बताइए उस टाइम का कैसा जमाना था LLR, क्योंकि आप फर्स्ट बैच से हैं. We are very keen to hear that. It was good because everybody was friendly. Like there were no seniors kind of thing, and there was nothing as being, if somebody is junior is your friend because there's nobody else to make friends with. So all good. तो आपके टाइम के मैम टीचर्स थोड़ा सा बताइए हम लोगों को. डॉक्टर जी.के. त्यागी थे. He was the principal. Then there was काफी स्ट्रिक्ट थे सुना. Not really. He was more devoted towards his medical college, like how it looks, how many plants have I implanted, this kind of attitude he had. He used to come and look around every morning and see what else can he do for the college. That's what the kind of person he was. Right. And he was head of pathology. So people didn't like him much because pathology was not a very good subject. And that's it. That was it about it. Then there was Dr. M.P. Malhotra, who was in medicine. He was a very good person. Yes. बात बताइए. डॉक्टर जी.के. त्यागी was very strict, है ना? Yes. He was very much into discipline. Yes. तो कभी आपके साथ कुछ हुआ डॉक्टर जी.के. त्यागी का कोई एनकाउंटर या No, never. Actually, when I was there, my father was ill.
So I was just a quiet girl going to class, coming back, doing my stuff, that sort of a personality. And I was living from home. I wasn't in hostel at that time. There were no hostels by then. But I have We heard had- that you we used had to drive those- बुलेट चलाती थी क्या आप, मोटरसाइकिल? Well, what happened was, the day it was my father's tehrveen, and I had to come to the college because I wasn't coming to the college for last 13 days. So I just asked my maternal uncle, who had his bullet there. I said, "Mama, ye le jaun?" He said, "Le ja." And that's how I came there. I brought it, but the thing was, when I had to stand it on the park it in the parking, I couldn't lift it. I had to ask somebody there to pull it so that I could park it. I still remember that. So that was the thing, and that was the day, So you I was drove very for sad. the first time that day. You drove motorcycle for the first No, time no, that no. day. I used to drive, but You not used to bullet. drive. Bullet, You used bullet to was drive. heavy. Yes, it Ah. was heavy. So just because, I thought, Boys लोग कुछ नहीं बोले जब when you went medical college no, on board? boys बाद में बोले, not then. उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा आपसे? ना उस समय तो वो चौकीदार था वहां पे, उसको मैंने कहा भैया इसको खड़ी करा दो, मुझसे खींच नहीं रही, इतनी भारी है ये। उसने खड़ी करा दी। एंड देन अच्छा, लड़की तो लौटते बड़ा समय हम ओके, तो मुझे छोड़ दिया है बॉयज ने, आपको कुछ ज्यादा बोला नहीं? ज्यादा कुछ नहीं बोला, वो इट वाज नॉट दैट टाइम, वो जमाने और थे, ज्यादा अच्छा, कुछ मैम, नहीं आपके बोलते। टाइम हमारे टाइम में तो बहुत खराब थे बॉयज। नहीं, हमारे टाइम में नहीं थे। एंड डॉक्टर त्यागी जी के त्यागी वाज रियली स्ट्रिक्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाँ, he was very strict, no doubt. डॉक्टर जी के त्याग, पर हमारे टाइम में कोई लड़की बुलेट चला के आ जाती ना तो हाँ। बस नहीं तो मैं तो बाद में भी चलाती थी, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा मैम अपने बैच का कोई कुछ मजेदार इंसिडेंट्स अगर आपको याद आता हो तो शेयर कीजिए, कुछ आपको याद आता हो जो बिल्कुल। या कोई डिसेक्शन हॉल में कुछ हुआ हो डॉक्टर नीलिमा? ना, nothing. डिसेक्शन हॉल में नथिंग हैपेंड? I told you that was the time my father was ill. I was mentally, disturbed, and how it happens. Yes, that was So tough I was time. just, it was tough time for me. अच्छा, मैम, रश्मि मैम आपकी तरफ चलते हैं। आप थोड़ा जो है बताएं हमारे सभी सुनने और देखने वालों को, आपके क्या किस्से थे आपके टाइम के? मैं तो सोच रही थी नीलिमा मैम हमें बहुत कुछ बताएंगी। मैं तुम्हारे किस्से बता सकती हूँ। मैम प्लीज। मैं तुम्हारे किस्से बता सकती हूँ, बिल्कुल। डफरिन हॉस्पिटल के किस्से बता सकती हूँ। She used to come with Ashok in his car, and then she would keep sitting in the car, and I would go and say to her, उतरने का मन नहीं कर रहा क्या? टाइम तो हो गया है हॉस्पिटल का। Then she said, आप बड़ी भांपू हैं। I remember that word, आप बड़ी भांपू हैं। नहीं, she was very smart in even hospital time में when she used to work with, I used to work with her in different hospital. So she always remained a very smart doctor and very hard working also, but Pant was very strict, very strict. So the day I came from my honeymoon, या not from honeymoon, from my vacations, तो ये हमेशा मुझे ड्यूटी पे लगा दिया करती थी, इमरजेंसी ड्यूटी पर, ये डॉक्टर खोसला, दोनों मिलकर। They were very strict that kind. अच्छा, मेडिकल कॉलेज में तो 1971 में हम लोग एंटर किए, तो तब तक हम 5 बैच निकल चुके थे हम लोगों से पहले। तो हमारा तो रिफ्रेशमेंट पार्टी भी हुई हम लोग की, रैगिंग भी बहुत हुई, और रैगिंग बहुत ज्यादा वाली हुई, मेरी रैगिंग टू मच वाली। You must have been the naughtiest person I know. या आई वाज डिक्लेयर्ड बदतमीज टाइप का लड़की, तो मैं तो बिल्कुल जवाब देती थी खुल के। तो बहुत सारा तेल सर में डाल दिया करती थी, खूब सारा तेल सर में डालती थी सीनियर्स। तो जो खुल के बोलता है ना, उसकी रैगिंग ज्यादा होती है। Yeah, they were. Dr. G.K. Tyagi was after my life कि you want to spread Guptaism in this medical college. They were boys, Gupta, Dr. C.D. Gupta, and some other doctors also who were Guptas.
तो डॉक्टर त्यागी जो है, एक बार स्ट्राइक हुई मेडिकल कॉलेज में, तो डॉक्टर आर.एल. गुप्ता थे ना, डॉक्टर आर.एल. गुप्ता, रश्मि सुनाई दे रहा है? गुप्ता, तो वो सोचते थे कि मैं उनके गैंग की हूँ, कहते यू वांट टू स्प्रेड गुप्ताइज्म इन दिस कॉलेज. He was head of the department surgery. आर.एल. गुप्ता बहुत अच्छे थे डॉक्टर आर.एल. गुप्ता. हाँ, Roshan Lal Gupta. He was a gentle person. He was in surgery. Means I have heard his name through lot of alumni. मतलब काफी popular teacher थे हमारे वो. ये जो हमारे मैडम सुषमा है ना, इनके किस्से डॉक्टर पंत से सुनिए. मैडम सुषमा के किस्से. हाँ, नीलिमा मैम, थोड़ा डॉक्टर सुषमा के थोड़े किस्से जो है शेयर कीजिए प्लीज. बस ये सुषमा तो भाग जाती थी और मेरे से कहती थी, आप मुझे कितने भी सर्टिफिकेट दे दें कि मैंने सिखा दिया है, जब तक मैं नहीं मानूंगी कोई कैसे मानेगा. अच्छा, ये तो कॉलेज में एंटर हुई, तो ये तो जैन साहब के साथ ही कॉलेज में एंटर हुई हैं. हाँ, ये हमने सुना कि सुषमा मैम. हाँ, वो गाना है ना, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, तो लगाना कोई दिल लगी नहीं, ये इनका हाल था मेडिकल कॉलेज में. और इनका तो एक बार बॉयज पीछे लग गए. नहीं, मतलब ऐसा है, फर्स्ट डे जब मैं एंटर हुई ना, सबसे पहले वो एनाटॉमी की कौन सी फाइल लेके जानी होती थी ना वहाँ पे, मैनुअल फर्स्ट डे एनाटॉमी में है, मैनुअल जो बनती थी हमारी. हाँ, मैनुअल. तो वो हमें क्या मालूम था भाई, फर्स्ट डे एंटर हुए, हमें तो मालूम नहीं है. और डॉक्टर वीके गुप्ता थे, क्या नाम था उनका, डॉक्टर वीके डेमोन्स्ट्रेटर. हाँ, उन्होंने बस गुस्सा हो गए, निकाल दिया क्लास से बाहर. और भाई इतना रोई मैं, खूब रोई. मैंने कहा भाई राम, बेइज्जती होगी, क्लास से बाहर निकाल दिया. और उसके बाद तो हम बहाने ढूंढते थे कि किसी तरह हमें कोई क्लास से बाहर निकाल. अच्छा मैम, झगड़ा क्या हुआ था आपस में? झगड़ा क्या हुआ था वो? कौन सा झगड़ा? जैन साहब के साथ जो हुआ था, कॉलेज बॉयज ने करा था हमारे क्लास के लड़के. अरे वो कभी कुछ किसी ने छेड़ दिया था इनके सामने ना, तो फिर वो मतलब नहीं. और फिर मेरे को फर्स्ट वो मिला पराया धन, मतलब जो देते हैं ना फर्स्ट होली पे. हाँ, कॉम्प्लीमेंट, पराया धन. और उसके बाद क्या हुआ, एक बार 5th ईयर में, दैट वाज रियली ग्रेट. 5th ईयर में क्या हुआ, आधे डॉक्टर्स को छुट्टी, आधे स्टूडेंट्स को छुट्टी मिलती थी 15 दिन की, आधों को मिलती थी अगले 15 दिन की. तो मैंने वो वाली ऑप्ट करी थी जिसमें कि बस 2-3 लड़के थे और एक अकेली मैं लड़की थी. तो ऑर्थोपेडिक्स में मेरी पोस्टिंग थी. ऑर्थोपेडिक्स में जब छुट्टी हुई 1-1:30 बजे, तो मैं अपना कुर्ता और चूड़ीदार चुन्नी एंड ए बैग, व्हाइट कलर का बैग मैं लेके घूम रही थी. बस आई नहीं थी, बस अड्डे पे खड़े थे, वहां पे वी वर स्टैंडिंग ऑन द बस, वेटिंग फॉर द बस. तो मैं कभी इधर से उधर से इधर घूम रही थी. तो कुछ लड़के आए, मतलब वो कहने लगे, अरे बेगमपुल चलना है, चलो बेगमपुल घुमा के ला. और वो भी उन्होंने मुझे छेड़खानी करी, मतलब मेरे को कहने लगे, चलिए आपको चलो उन्हें क्या मालूम मैं कौन हूँ, मतलब. तो कहने लगे चलो बेगमपुल घुमा के लाते हैं, वहां पे चाट खिलाएंगे, वहां पे पिक्चर दिखाएंगे. The boys had grown not that bad. बहुत बुरी हालत थी. तब मैं रोने लगी बिल्कुल. और जब मैं रोने लगी तो मैंने कहा, तुम इधर आओ, कौन सी क्लास में हो तुम? तो उन्होंने कहा फर्स्ट ईयर. मैंने कहा अच्छा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और मुझसे छेड़खानी कर रहे, तुम जानते हो कौन हो? फिर एक हमारे बैच का लड़का आ गया. फिर तो वो जो पिटाई हुई है पूरा 1 महीना उन लोगों ने, मतलब ये है कि पूरे हॉस्टल में 13 नंबर लगाते रहे वो. और सबने उनसे कहा कि तुम अपनी दादी परदादी को नहीं पहचानते. अपनी दादी परदादी से कह रहे हो कि चलो बेगमपुल घुमा के लाए. ओ माय गॉड, बहुत पिटे वो, बहुत, मतलब क्लास फेलोज ने बहुत मारा उनको. नहीं, काम भी पिटने वाले किए थे. नीलिमा दीदी की बात बताती हूँ मैं एक बार की. मतलब शी वाज सो गुड इन मिनी लैब, शी वाज एक्सीलेंट, मतलब मिनी लैब में. तो मेरी एक पेशेंट आई, तो मैंने कहा
डॉक्टर पंत से कि भाई आप इसका मिनी लैब कर दो। तो ठीक है, उन्होंने फटाफट कर दिया। मैं उसके पास खड़ी खड़ी बातें कर रही थी पेशेंट से। उसके बाद जब खत्म हो गई, ऑपरेशन खत्म हो गया, तो बड़ी जल्दी करती थी वो, तो 5 मिनट में मिनी लैब कर देती थी। जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो वो पेशेंट पता है क्या कहती है? वो कहती है कि मैंने कहा अच्छा हो गया ऑपरेशन, बहुत अच्छा हुआ, देखो कितनी बड़ी डॉक्टर साहब से मैंने तुम्हारा ऑपरेशन कराया। तो दैट पेशेंट सेड कि अगर आप करती तो मुझे ज्यादा मुझे कम तकलीफ होती। एंड आई फेल्ट सो प्राउड कि मैंने कहा। देखो डॉक्टर पंत की मुझे एक बात हमेशा याद आती है, इन्हें तो याद नहीं होगा, हम लोग ओपीडी कंडक्ट किया करते थे। तो एक पेशेंट आए, शी वाज टीचिंग इन अ स्कूल, प्राइमरी स्कूल में गांव में होती थी ना, लड़कियां पढ़ाती थी, तो उसका एंटीनेटल चेकअप था एंड डॉक्टर पंत वाज चेकिंग एग्जामिनिंग हर। तो उसको कोई 3rd मंथ था, इन्होंने कहा तुम प्रेग्नेंट हो, 3रा महीना चल रहा है तुम्हारे। तो वो बोली तो डॉक्टर साहब मैं छुट्टी ले लूं स्कूल से? तो डॉक्टर पंत बोली बच्चा गड़ेगी क्या घर में बैठकर? याद है आपको? कहती बच्चा गड़ेगी क्या घर में बैठकर? अरे डॉक्टर नीलिमा पंत की तो एक बात और मैं बताती हूँ। मतलब शी यूज्ड टू कम टू द ओटी एग्जैक्ट 8 o'clock पे वो एंटर हो जाती थी अंदर, और मतलब तुम ये देखो कि सैंडल पहने पहने अंदर जाती थी ओटी में। हम लोग कहते थे कि इनकी सैंडल वैंडल सब जो है ना स्टरलाइज होके आती है। अच्छा मैम, मैं एक एक करके आप लोगों से क्वेश्चन जानना चाहता हूँ। पहले नीलिमा मैम की तरफ चलता हूँ। मैम, कॉलेज में किसी टीचर के साथ कोई, अगर आपको कोई इंटरेक्शन, कोई फनी इंटरेक्शन अगर याद आता है, नीलिमा मैम आपको कोई याद आता है किस्सा किसी टीचर के साथ इंटरेक्शन का, किसी और स्टूडेंट के साथ या आपके साथ? नहीं, मेरे को कोई ऐसा याद नहीं है। The only thing I remember is when we had done college cultural activities. So drama में participate किया था, I still remember, and I had got best actress award as well. क्या बात है मैम। अरे So- वाह। So there was a pharmacology की एक some Saxena थी, मुझे याद नहीं आ रहा, when who said नीलिमा तुमने तो रुला दिया हमें आज। I mean, she was so impressed that that's the only thing I remember from Okay. her. That was a great compliment. Yes, but nothing else. I mean, I Okay. never had any confrontations or anything with anyone. रश्मि मैम? लड़का था जाट लड़का श्रीओम शर्मा, डॉक्टर श्रीओम शर्मा। तो जब हम लोग की रैगिंग होती थी ना, तो उसमें कुछ करते थे वो लोग। और ही वाज टॉपर, 3rd रैंक आई थी उसकी CPMT में। उसको जब उन्होंने चाय में नमक डाल के पिला दिया श्रीओम शर्मा को, तो अगले दिन क्लास में आया, बोला कि अब उन सालों ने चाय में नमक डाल के पिला दी, अब उसे कुकर पीऊं। नमक डाल के पिला दिया, उसे कुकर पीऊं। पूरी जाट वाली लैंग्वेज में। कि लैंग्वेज 5 के 5 साल वो जाट की तरह ही बोलता रहा। और उसके बाद ही ज्वाइन PGI चंडीगढ़, और मैं एक बार चंडीगढ़ PGI में गई तो पीछे पीछे आ गया मेरे, बोला हाय डॉक। मैंने कहा ये वो श्रीओम शर्मा है। कुकर वाला। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बात है। सुषमा मैम, आपको कोई किस्सा याद आता हो तो प्लीज शेयर कीजिए, किसी टीचर के साथ या वाइवा का कोई फनी इंसिडेंट्स। अरे वाइवा का तो खैर मैं कॉलेज ही ज्यादा आती ही नहीं थी, बहुत कम। हाँ, हमें पता चला आप जो है ये तो पर एक बार पता है, वो डॉक्टर RL गुप्ता जो थे ना, वो पता नहीं कैसे, वो शायद गुप्ता समझ के वो सोचते थे इतनी स्मार्ट और इतनी अच्छी स्टूडेंट है ये, वेरी इंटेलिजेंट। तो जैसे ही मैं क्लिनिक में आती थी, ही वुड से चलो सारे क्वेश्चन इससे पूछो, और बड़े खुश होते थे, कुछ भी आंसर दे दूं मैं। और सब लोग कहते थे आ गई बस अपना सुषमा, अब सब लोग अलग को बैठ जाओ, और डॉक्टर RL गुप्ता तो इसी से बात करेंगे। और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ अ पेशेंट कम्स विद एक्यूट एब्डोमेन व्हाट आर यू गोइंग टू डू। ये फाइनल का वाइवा था मेरा।
ठीक है ना। और मैंने कहा सर हम ऑपरेट करेंगे, एंड ही वाज सो हैप्पी कि उन्होंने मुझे फुल में से फुल मार्क्स दे दिए। अच्छा, एनाटॉमी का एक किस्सा था, आई वेयर दिस नोज पिन नो, एनाटॉमी का फाइनल का एग्जाम था, तो पता नहीं कौन से डॉक्टर आए हुए थे एग्जाम लेने के लिए, डॉक्टर उल्ला थे और वो थे, एंड ही डिडंट आस्क मी अ सिंगल क्वेश्चन, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। मेरा पूरा वाइवा जो है नोज पिन के ऊपर हुआ। He just went on asking this only. फेवर कर देते थे, लड़कियों को थोड़ा फेवर करते थे वाइवा के टाइम में। मैम ये बताइए, आप दोनों के टाइम में तो डल्लू मेरे ख्याल था नहीं था, डल्लू की दुकान चाय। अच्छा, नीलिमा मैम से पूछते हैं, मैम आपके टाइम में था डल्लू? थोड़ा प्लीज थोड़ा याद करते हैं उन दिनों को, थोड़ा बताइए कि क्या था उस टाइम पे, माहौल कैसा हुआ करता था, क्योंकि डल्लू से बहुत सारी प्रेम कहानियां उपजी हैं, बहुत सारी। ऐसा वो जो लोग जात के बैठते थे वहीं प्रेम उपजता था, वही कहानियां होती थी। मुझे कोई शौक नहीं था उसकी दुकान में जाने का। तो हमारे तो बैच में था क्लियर कट। नहीं, उसकी चाय तो बहुत पॉपुलर थी। हम लोग तो खैर बहुत जाते थे, चाय समोसे खाने बहुत जाते थे उसके यहाँ, डल्लू के। हमारे यहाँ तो ये था, हमारे ग्रुप में नितिन, अगर कोई लड़का किसी को प्रपोज करता था, लड़की को प्रपोज करता था, या उससे कहता था कि भाई यू आर वेरी स्मार्ट, ब्यूटीफुल, कुछ भी इस टाइप की चीजें, तो हमारा पैक था कि डल्लू पे जाके चाय और समोसा उस लड़की से खाते थे जिसके पास प्रपोजल आता था। तो डल्लू क्या, इस टाइप के ग्रुप बहुत ज्यादा रहते थे। ओके। खाली प्रपोज करने के लिए। वैसे ज्यादा एंजॉय तब करा जब मतलब मैं दोबारा से मेरी पोस्टिंग हुई ना, आफ्टर आई जॉइंड डफरिन, तो 78 में मेरे एनेस्थीसिया ट्रेनिंग के लिए मेरी 3 महीने की पोस्टिंग हुई मेडिकल कॉलेज। ओके। तब मैंने बहुत एंजॉय करा, क्योंकि सारे विजय था, कोटपाल था, हमारे साथ सोंदी था, तो हम लोग फिर बहुत जाते थे, मतलब वहाँ बैठते थे दिल्ली। एक्चुअली क्या था, सुषमा के साथ क्या प्रॉब्लम थी, ये शी वाज ऑलरेडी अटैच्ड टू जैन साहब, तो इसने कॉलेज का पूरा मजा तो लिया नहीं, इसने बाद में कॉलेज का वो करा। और हम गए थे बिल्कुल फ्री, हम थे एकदम फ्री, एब्सोल्युटली फ्री बर्ड। ऐसी का काम होता है मेडिकल कॉलेज में, लैब जो इवनिंग क्लासेस होती थी उसके अंदर, तो यही सब हम लोग इतने बिजी हो जाते थे, रात के 8 बजे तो फ्री होते थे हम लोग। क्या करें, यही। अच्छा मैम, एक नीलिमा मैम से एक चीज पूछते हैं। मैम आपने जब कॉलेज, जब मतलब पहला बैच था आपका, उस टाइम पे थोड़ा सा बताइए कि कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे हम लोग के टाइम तक एसएमसीटी और ये स्टिमुलस जो है आ गया था, आपके टाइम में क्या, आपके टाइम में क्या था? बस वही था, एक कुछ नाम था? नहीं, नथिंग लाइक दैट। जो हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी थी, ये डॉक्टर प्रशांत गुप्ता को जो आप बता रहे हैं, जी वो उसी के, हाँ, उन्होंने ही शुरू कर रखी थी वो। ओके। मैं तो एक्सीडेंटली पहुंच गई थी, एक लड़की वहाँ एक्टिंग कर रही थी, उसको मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, थोड़ा इंटोनेशन दो, ऊपर नीचे करो, ये करो, सो करो, एंड ही वेंट आफ्टर मी, यू कम एंड। अच्छा, कौन सा नाटक था मैम, कुछ याद है? वो था सराय के बाहर था शायद। क्या बात है मैम, मतलब हम बात कर रहे हैं, टाइम में डॉक्टर वीपी गोयल ने चार्ज ले लिया था पूरा कल्चरल एक्टिविटीज का, डॉक्टर वीपी गोयल ने, एंड आई वाज वेरी एक्टिव। पूरे 5 साल शायद मेरे को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वहाँ पर। क्या बात है मैम। सुषमा मैम, फर्स्ट ईयर में मैंने कभी एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं करी है मैंने वहाँ। आप तो बिजी थी ना, आप तो एंगेज थी। ये बहुत एंगेज, मैंने कहा ना, तो डॉक्टर पंत से पूछिए, ओटी में भी ये जाती थी और बाहर दो बार फंसी हूँ मैं रैगिंग में, बहुत बुरी तरह। मैम थोड़ा शेयर कीजिए, रैगिंग का शेयर कीजिए। अरे 2 बार फंसी हूँ मैं, पकड़ के ले गए लाइन में, क्योंकि मैं डे स्कॉलर थी तो कम ही मतलब आता था ऐसा चांस कि भाई कोई पकड़े जाए, चले जाते थे। वो तो लड़कियों ने पकड़ लिया, सीनियर्स ने पकड़ के लाइन में ले गई, नीचे देखो, तेल लगाओ, ये करो, वो करो, पैरों को देखो। फिर तो जो शाम के 9-10 बजे तक उन्होंने हमें गाने गवाए उल्टे सीधे, उसके कमरे में जाके ये गाना गाओ, उसके कमरे में जाके उठक बैठक लगाओ, उसके कमरे में जाके पानी पी के आओ, पता नहीं क्या क्या, मतलब दो बार फंसी हूँ मैं। क्या हम तो रोज ही फंसे थे, और किसी भी डेमोन्स्ट्रेटर का नाम लेके गाना कहती थी, गाना गाओ, मतलब दे यूज्ड टू टेक किसी भी डेमोन्स्ट्रेटर का नाम
कि आई लव यू, हाँ। उस डेमोन्स्ट्रेटर का नाम लो और फिर वो गाना गाओ। अच्छा। रश्मि तुझे तो जो वो आलू वाला है वो मिला था वो बता देना। रश्मि आलू वाला इंसिडेंट जो तूने करा था तो उसमें मुझे तुझे आलू मिला ही था। कहने लग गए थे ना जब मैंने आलू का मोनो एक्ट किया था। अच्छा। दे स्टार्टेड कॉलिंग मी आलू, तो मोनो एक्ट था, बड़ा फेमस हुआ था वो। तो क्या फिर बात मेरी बेस्ट फ्रेंड थी दीपा, मैं और वो दीपा साथ रहते थे हमेशा। तो पीछे से लड़के आवाज देते थे आलू एंड आलू की टिक्की। दीपा को आलू की टिक्की बोलते थे। ओके। My अच्छा God. मैम, In our times, things were really sober. हाँ क्योंकि हाँ? आपका तो पहला बैच था मैम, आपके ना कोई सीनियर थे जो ना, आपको ना। रैक करते, No. तो आप मींस आप तो वो थे ना, जैसे कहते हैं फर्स्ट जो जनरेशन हाँ। होती है, Mm. तो इसीलिए हम वी आर रियली कीन मैम टू एक्चुअली नो कि उस टाइम पे सिनेरियो कैसा होता था और क्लासेस कैसी होती थी मैम डॉक्टर उस टाइम फन पे। क्लासेस कैसे होती थी आपकी? हाँ कौन कौन था उस समय? मॉर्निंग में से हम लोग की क्लास स्टार्ट हो जाया करती थी। हाँ हम लोगों की भी ऐसे ही था, because I wasn't living there in the hostel. वो तो जिस समय जो लेक्चरर्स के क्वार्टर्स थे, जो जीके त्यागी की लाइन में सारे जितने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, उन्हीं में सबको हॉस्टल की जगह दी गई थी, क्योंकि हॉस्टल तब तक तैयार ही नहीं था। And my Okay. house being in locally, so I used to go home most of the time. ओके नहीं, Right. बहुत स्ट्रिक्ट हम लोग बहुत डरते थे एचओडी वगैरह से। आपके टाइम में भी यही हुआ? हमारे टाइम में तो जूड़ा बनाना पड़ता था। जूड़ा जूड़ा। बनाना पड़ता था। हाँ, बाल नहीं खुले रख सकते थे वो। डॉक्टर रमावैश वगैरह कितने वो तो डांटती थी। डॉक्टर रमा वैश थी जो बाल नहीं खोलने देती अच्छा थी। मैम, तब ड्रेस क्या होती थी मम्मी के टाइम में? कोई ड्रेस कोड था? जैसे हम लोग के टाइम तक तो वाइट जो है पैंट और पूरे बिल्कुल एकदम वाइट शर्ट और वाइट नहीं, एप्रन। हमारे time we had no dress that code. was during ragging. हाँ ड्यूरिंग रैगिंग। Talking about नहीं हाँ ragging. रैगिंग के टाइम पे वही मैं पूछ रहा हूँ, आपके टाइम पे भी No, रश्मि no, मैम no. वो Full 1 year, हाँ, या we had to wear white सलवार कुर्ता and एक इसमें लाल रिबन, एक इधर ब्लैक रिबन। ये शुरू किस बैच ने किया? ये ये ब्लैक I don't know. I ये really ट्रेंड किस don't know. बैच ये ट्रेंड किस बैच ने शुरू किया मैम? I didn't see it. सीनियर बैच था डॉक्टर मंजुला लखनपाल वाला। 70 बैच। 70 बैच नहीं, उससे भी सीनियर बैच। हमारे को तो 3-4 बैच रैगिंग करते थे, बहुत जबरदस्त रैगिंग करते थे। हाँ मुझे पता, इवन मैम यू वोंट बिलीव 68 कितना तेल लगाना पड़ता था, एक पूरा डिब्बा खत्म हो जाता था तेल का। इतना नहीं। आफ्टर 3 months ना वो एक रिफ्रेशर पार्टी होती थी, फिर द हाँ। सीनियर दे यूज्ड टू गिव पार्टी आफ्टर 3 months। लेकिन वो 3 महीने हमारे बहुत खराब, बहुत रैगिंग करते थे। हाँ घबराहट होती थी, पकड़ कर हमको अंदर ले जाते थे हॉस्टल में और बहुत ज्यादा। अच्छा लेकिन एक बात और है मैम, उस टाइम की जो रैगिंग के टाइम की जो बॉन्डिंग बनी है वो अभी तक बरकरार है, क्योंकि Yes. अब तो रैगिंग सब अब तो वो रैगिंग होती नहीं है मैम, अब वो वाला सिनेरियो हट गया है। बट आप डाइसेक्शन हॉल का अपना फर्स्ट डे का वो बताइए एक्सपीरियंस। Uh, बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट डे। आपको कुछ हुआ? didn't feel like touching the cadaver. और फिर धीरे धीरे तो आदत पड़ जाती है। पर हाँ पहले दिन हमारी माइन वाज अ फीमेल कैडावर एंड वी 3 girls and 5 boys। और हम लोग छोटे उम्र के 17-18 साल के, अब वो कैडावर इस तरह पड़ा हुआ है वहां पर नेकेड, बिल्कुल। इतनी शर्म आती थी, हम देखते ही नहीं थे एक दूसरे की तरफ। आंखें इस तरह ये करके बैठ जाते थे। पूरा वीक लग जाता था उसको यूज टू होने में। लग जाता है, टाइम लग जाता है यूज टू होने में। जरा सा हाथ लग जाए ना किसी लड़के से, ये हाथ लग जाए तो लगता था वो क्यों टच हो गया। और उसके बाद तो ऐसे बिंदास हो गए, जो लैब लिविंग वाइवा ये फिर तो पूरे बेशरम जिसे कहते हैं ना। अच्छा मैम एक चीज बताइए, आप लोगों के बैच से कितने पेयर बने? नो नॉट ओनली 1 पेयर। दो बने, दो नो रश्मि 2 बने, बाद में फिर सुप्रभा और विजय। अच्छा, सुप्रभा एंड विजय। और नीलिमा मैम आपके बैच में 66 में
कुछ आइडिया? कुछ नहीं, बहुत बहुत सीधी लड़कियां थी, सिर में तेल लगाती थी और अरे वो तो फर्स्ट ईयर मैम, उसके बाद तो फिर तो एकदम सब निखर के आते हैं ना जब फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है। I don't remember अगर ओके कोई बना भी पैर तो I don't remember. ओके राइट राइट अच्छा, ओके। आपके टाइम में लैब लिविंग वाइवा, लैब इवनिंग क्लीनिंग तो होती होगी ना डॉक्टर हाँ नीलापन? हाँ होती ना थी। इवनिंग क्लीनिंग तो मस्त थी। हाँ इवनिंग राउंड्स भी होते थे, थर्ड ईयर से शुरू हो गए थे। हाँ राइट ओके ये सब होता था। पर ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। I don't remember even one girl or one boy getting together. ओके वो जमाना, हमारे यहाँ वो तो टाइम ही और था। मैम वो अच्छा, इस हम लोग का तो ग्रुप हो जाते थे, 4 लड़के 4 लड़कियां, बट वी यूज्ड टू वॉक मतलब इन ग्रुप्स, पिक्चर जाते थे तो ग्रुप्स में जाते थे, सब चीज ग्रुप्स में करते थे। पेयर कभी कोई नहीं बना। ओके। ना, अच्छा हाँ, चलिए पेयर नहीं बना। मैम एक काम करते हैं, अब चलते हैं एक रैपिड राउंड की तरफ, ठीक है? तो मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपको जो भी उस वर्ड को सुन के जो भी फीलिंग आए या जो वर्ड आए तुरंत बोलना है मैम, सोचना नहीं है। तो आप अपने अपने एक वर्ड, साथ बोलेंगे सब, नहीं एक साथ नहीं, One क्योंकि by फिर वो one. 1 बाय 1 समझ नहीं आएगा, बट आप सोच लीजिएगा कि आपने क्या बोलना है, ठीक है? पहला वर्ड है LLRM। my medical college. कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। क्या बात है। और सुषमा मैम आपको क्या शब्द याद आता है? ब्यूटीफुल कॉलेज, ब्यूटीफुल कॉलेज। ओके LT लेक्चर थिएटर। Few interesting lecture theaters. ओके रश्मि मैम? शरारते। शरारतें। सुषमा मैम? हाँ मेरा भी बदमाशी ओके पीछे बैठ के। ओके अगर मैं बोलता हूँ तो आपको क्या जो है मेमोरी या शब्द ध्यान में आता है? शायद बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं है हॉस्टल की। ओके Different kind of people, you know, doing their own things and not getting along. मुझे अच्छा नहीं लगता था अगर दो लोग भी आपस में ठीक से नहीं बात कर रहे हैं तो। ओके That sort of a person I was. ओके ओके रश्मि मैम? अरे हॉस्टल की तो बहुत यादें हैं, बहुत शब्द यादें हैं, शब्द पुरानी एक शब्द यादें, एक golden- शब्द एक शब्द। कन्फेशन। ओके सुषमा मैम? रैगिंग। ओके अच्छा मीठी यादें नहीं कहा। कॉलेज की मैथ सुन के क्या याद आता है आपको? खाली पेट भरना है। रश्मि मैम? इससे बुरा मैस हो नहीं सकता। हमारे सुषमा टाइम मैम? में मैथ्स अच्छा था। मैं तो गई नहीं कभी। आपने बाहर का ही खाना। अच्छा ये मजेदार है मैम। अच्छा एक एक बाहर करके। का नहीं, मैं हॉस्टल में रहती नहीं थी ना। That's हाँ why, वही घर मैम ने का बताया ना, आप तो एंगेज थे। खाना खाती ये थी तो घर से। मेडिकल कॉलेज में भी मुश्किल से ही रहती थी। वो तो ये she अरे was चला। very intelligent, अच्छा। that's why she got through. अच्छा नहीं, कॉलेज ही Sushma नहीं was अटेंड करा। intelligent, no doubt. She was intelligent, no doubt. She was very intelligent. But हवा ही रहती थी अपने उसके साथ, हर समय क्या? हवा ही। नीलिमा मैम? डल्लू। चाय की दुकान। क्या बोला? डल्लू। डल्लू। मीठी यादें। हाँ फ्रेंड्स। ओके नीलिमा मैम? बॉयज हॉस्टल। I don't think I had any connection with that. ओके Never went there. I went on the way once. Very bad. अरे मैम ये तो बताना बनता है, ये कैसे हुआ? वो ऐसा हुआ था कि कोई जना, मैं किसी के पीछे पीछे भागी थी, पता नहीं कुछ पूछने के लिए, तो वो पूरा हॉस्टल तक पहुंच गया था, बॉयज हॉस्टल तक। ओके अच्छा नीलिमा मैम विटी बैचमेट। I think they were all witty. Okay. You can't undermine them. Okay. They're Great. all intelligent people. Great. Rashmi ma'am. Dr. Potpal, he is no more now. Okay. हाँ कोटपाल, मैं भी कोटपाल कहने वाली थी, सेम क्या बात? कोटपाल। Okay. नीलिमा मैम दिलदार बैचमेट। दिलदार तो नहीं, दिल फेंक तो सारे ही होते थे। ये बढ़िया जवाब था। मुकेश जैन। ओके
मेरा तो ज्यादा कांटेक्ट रहा नहीं, सो आई कांट से एनी। ओके ओके। नीलिमा मैम, कोई कंजूस बैचमेट अगर आपको याद आता हो? नहीं, वो भी मुझे याद कोतवाली था, वो भी कोतवाली था। मोस्ट कंजूस, हाँ कंजूस से भी ज्यादा कंजूस। बहुत ज्यादा। ओके। अच्छा, नीलिमा मैम के उसमें तो कोई जो है ऐसा, क्योंकि इनका फर्स्ट बैच था तो इनके लिए क्वेश्चन अप्लाई नहीं होगा, लेकिन रश्मि मैम, हैंडसम सीनियर ड्यूरिंग कॉलेज टाइम? हैंडसम सीनियर याद है, यूज्ड टू बी वन, वो मेडिकल वो उसमें चला गया था झांसी। आई रिमेम्बर हिज नेम, मोहन, शायद डॉक्टर मोहन। मेरे को तो एक आई सर्जन, आई मतलब आई में वो कर रहा था, तभी तभी आया था शायद आई में। आई फाउंड हिम वेरी वेरी हैंडसम, एंड मैं स्पेशली आई दिखाने जाती थी। अपनी नाम याद नहीं है मुझे, नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका। रश्मि, एक सूरी थे ना, डॉक्टर सूरी। आई नो सूरी, ये नहीं दूसरे लंबे से, तो उनको ना पता ऊंचा सबरवाल और मैं, हम दोनों उनको देखते रहते थे और कहते उनके लिप्स कितने अच्छे। उस समय जैन कहाँ थे? वो वहां नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलिमा मैम, फेवरेट पास टाइम इन कॉलेज? रीडिंग स्टोरीज। ओके। सिंगिंग रोमांटिक नंबर्स विद फ्रेंड्स। क्या बात है। हम तो ऐसे पढ़ते ही रहते थे, इधर उधर देख घूमते रहते थे, बातें करते रहते थे उषा के साथ, बस ज्यादा मैं वहीं उसी के साथ रहती। ओके। अच्छा मैम, फेवरेट ड्रिंक नीलिमा मैम? पानी। रश्मि मैम? मेरी तो टी। टी, ओके। अच्छा, आप एक एक करके मैम आप बताइएगा फेवरेट सॉन्ग क्या है, और उसकी 2 लाइनें जो है गुनगुना दीजिए आप। ये तो That's tough. नीलिमा तो she can sing. No, I can't. फेवरेट सॉन्ग क्या है मैम आपका? None. बहुत सारे होंगे सॉन्ग्स, तो ये थोड़ी होगा। कोई भी मैम, आप जो भी सुनती हो, हिंदी, वेस्टर्न, कुछ भी गाइए। के सरा सरा आपने वहाँ गाया, सुनाया था डफरिन हॉस्पिटल हाँ, में। के सरा सरा सुनाया था। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा गाया था मैम। हो जाए 2 लाइन प्लीज। 2 लाइन जी, 4-5 गाएंगे। हाँ बिल्कुल 2 लाइन तो तकिया कलाम है। हाँ, गाइए। When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? That's it. वाह, क्या बात है। रश्मि मैम, हो जाए। मैं आपको एक शेर सुना देती हूँ। इरशाद। ठीक है ना, नीलिमा जी के लिए सुना रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। नीलिमा जी, हम कितने साल बाद मिल रहे हैं? 40 साल बाद। Probably, yes. Probably ना, तो it's for you only. Okay. मुद्दतों की जो दी उसने आवाज, कदमों की क्या बिसात, सांसें ठहर गई। Oh वाह, my goodness. क्या अरे बात, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल अप्रोप्रिएट एंड एप्ट जो है शेर। इस समय जो याद आ रहा है वो सुना देती हूँ 2 लाइन। बिल्कुल। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद। क्या बात है, क्या बात है। दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। क्या बात है मैम, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा मैम, फेवरेट मूवी नीलिमा मैम? I think कभी कभी थी। कभी कभी, अमिताभ बच्चन। ओके। रश्मि मैम? साहब बीबी और गुलाम। अरे क्या बात है, क्या बात। सुषमा मैम? मुझे तो सारी हिंदी पिक्चरें अच्छी लगती है। पुरानी नई सब। अच्छा नीलिमा मैम, आपके टाइम पे कोई मैगजीन निकलती थी कॉलेज की? कुछ प्रिंट होता था कुछ? आई डोंट नो उस टाइम पे क्या था। नहीं, कुछ समय शुरू में तो कुछ नहीं था, बाद में कुछ शुरू हुआ और 4th या 5th ईयर में जब हम थे। आई डोंट रिमेम्बर देन, नथिंग स्पेक्टेकुलर। ओके। रश्मि मैम?
हमारे टाइम में ना हो मैगजीन तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन होली के बाद एक छोटी सी बुकलेट होती थी, वो रात को हॉस्टल के रूम में पास कर दिया करते थे। उसमें कॉम्प्लीमेंट्स फॉर एवरी गर्ल, और वो इतने गंदे कॉम्प्लीमेंट्स होते थे कि हम बता ही नहीं सकते आप। तो वो कॉम्प्लीमेंट्स थोड़ी हुए ना। क्या क्या वे वो बताओ। नहीं, वो पूरी बुकलेट हुआ करती थी। कमेंट आते थे। कमेंट है, कमेंट नॉट कॉम्प्लीमेंट होता तो अच्छा होता। नहीं, अच्छा ही होता था, लेकिन मतलब थोड़ा सा स्पाइसी, नॉट ऐसे कि बहुत गंदा होता था, बट वेरी स्पाइसी। लेकिन जो बॉयज के लिए होते थे वो बहुत गंदे होते थे, तो वो हमारे टाइम में हुआ करती थी। वो उनको हमारे टाइम में इनकाउंटर्स बोलते थे मैम। तो हमारे टाइम में जो मैगजीन निकलती थी उसमें इनकाउंटर्स नाम से वो आते थे। तो अभी जो है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। तो हम चलते हैं मैम, मैगजीन की बात हो रही है, तो हम लोगों ने एक्चुअली हमारे टाइम में जो ब्लास्ट मैगजीन आती थी, हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है, तो ई ब्लास्ट के फॉर्म में। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग जो है सारे एल्यूमनाइज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक हमारा जो है एफर्ट है कि हम जितने भी एल्यूमनाइज हैं जितनों को हम कनेक्ट कर पाए, और इट्स ए ब्यूटीफुल जर्नी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं 66 बैच 71 बैच के साथ एक फोरम पे आके जो है बात कर रहा हूँ। तो मैम मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इस अपनी तरफ से मैसेज जो है दीजिए ई ब्लास्ट टीम के लिए कि आपको क्या लगता है कि ये प्लेटफॉर्म कैसा आपके नजरिए से, और आप कुछ इसमें सुझाव देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो नीलिमा मैम से शुरू करते हैं। It's a very good effort bringing all of us together. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मुझे रश्मि मिल जाएगी। रश्मि का तो मुझे पता ही नहीं था, सुषमा से तो मेरी बातचीत होती रहती थी। मैम और रश्मि मैम, आप जो है कुछ कहना चाहती हैं इस ई ब्लास्ट टीम के लिए, या कुछ मैसेज हो आपका तो प्लीज जो है। मुझे आप लोगों की अंताक्षरी बहुत पसंद आई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Very grateful to you, Nitin, that you have brought us together and you are doing a good job of it. Really, very, very interesting also. See, so many people we are knowing, we have come to know, and whatever you will send these to others also, and they will also come to know so many things. Absolutely. मैं तो ये कहूँगा नीलिमा मैम, आपका बैच तो एक्टिवेट हो ही जाएगा इस इंटरव्यू को देखने के बाद। हाँ, मनोज तिवारी भी तो है। रश्मि आपकी बैच है ना? यही नहीं, जूनियर मनोज तिवारी ओके। मनोज तिवारी इज फ्रॉम योर बैच है, डॉक्टर मनोज तिवारी। हाँ, he was from our batch. 8 बैच है, सिल्वर जुबली बैच है। तो मैं चाहूंगा कि आप तीनों एक एक करके सारे एल्यूमिनाई से एक अपील कीजिए कि वो इस ओएसए में शिरकत करें, और ताकि ये ओएसए जो है एक सक्सेसफुल ओएसए जो है बने। Whoever is there from my batch and whoever knows me, please join. That's what I can say. Thank you so much. क्या बात है। Yes, it's very exciting. Actually, OSA meet is very exciting. Please join this OSA meet and enjoy your olden days. जो भी आपने करा है मेडिकल कॉलेज में, just revive your good olden days. क्या बात है। Yes, all my friends, all medico friends, please come for OSA and revive your memories of the old days. You will enjoy it. 98 batch is a very good batch, and Nitin, he will guide you everywhere. So please do come. I am making a big appeal for it. Thank you so much, ma'am. और मैम जो है फोरम पे आई, मींस फर्स्ट बैच आई एम सो ग्रेट। ये जो उनका आना ही तो वो कहते हैं ना कि वो आए उनको देखे, या रश्मि बोलेगी शेर तो वही बोलती है। नहीं, मेरे को तो घर को देखते हैं। आपको नो नीलिमा जी के लिए एक और शेर है। आपको देखकर देखता ही रहा, आपको देखकर देखता ही रहा, क्या कहूँ, कहने को अब और कुछ क्या रहा। क्या बात है। We are so proud of the fact that she is from first batch. Absolutely. और एक शेर मैम मुझे भी याद आ गया कि मैम का इंटरव्यू बहुत टाइम से हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो था कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तो मैम आ ही गई। आना पड़ेगा, देर लगेगी, आना तो पड़ेगा। पूरे ई ब्लास्ट टीम की तरफ से आप
तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस फोरम पे आने के लिए, और पूरे 98 बैच की तरफ से मैम थैंक यू सो मच। और हम लोग मिल रहे हैं ओएसए में। All the best wishes for 98 All the best. batch. All the best.